آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شہر میں منگل تک وقفے سے بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 87% ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ کی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 121 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شہر میں منگل تک وقفے سے بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، صبح سویرے سے ہی دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ روز کی بارش کے باعث ہبس اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے، اور شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں منگل تک وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ یہ دیکھا جائے گا شہر لاہور کے بعض علاقوں میں تو ہلکی بوندا باندی ریکارڈ کی جائے گی، لیکن بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی شہر لاہور میں 40% امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں بارش برسنے کے۔ اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ آج 87% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو فضائی آلودگی نے بھی شہر لاہور میں سر اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں آج شہر لاہور تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 121 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی، تو جوہر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 100 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 5 کا ایئر کوالٹی انڈیکس 120 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آج یہی دیکھا جائے گا سارا دن کہ شہر لاہور میں بارش ہوگی، اور دھوپ اور چھاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ سامیہ سعید ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا تھا۔ موسم کا احوال آپ کو بتاتے چلے، شہر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شہر میں منگل تک وقفے سے بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 87% ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ صحت کا جعلی انجیکشن بنانے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں انجیکشن بنانے والی جگہ سرب مہر کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ صحت نے ٹھوکر نیاز بیگ میں جعلی انجیکشن بنانے والی جگہ سرب مہر کر دی ہے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں جعلی انجیکشن بنانے میں 2 افراد ملوث ہیں۔ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان جعلی انجیکشن بنا کر 1200 روپے میں فروخت کرتے تھے، جبکہ اصل انجیکشن کی قیمت 40,000 سے 1,00,000 روپے تک ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، آشوب چشم کے مرض نے صوبائی دارالحکومت لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور ان سے پانی بہنا مرض کی بڑی علامات ہے۔ ایک ہفتے کے دوران لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان دنوں جہاں ڈینگی کے مرض نے اپنے پر پھیلانا شروع کر رکھے ہیں، تو وہیں آشوب چشم کا مرض بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ عمومی طور پر جب آنکھ کی باریک جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ آنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپ لیتی ہے، جس کے باعث جھلی کی سفید رنگت گلابی یا سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے آشوب چشم کی واضح علامت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی بیماری کی جب کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ 2 لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں، بچوں کو پیار نہ کریں، اپنا تکیہ، تولیہ، رومال وغیرہ علیحدہ رکھیں، اور اوائڈ کریں کسی گیدرنگ میں جانے کی۔ اب دیکھیں بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ بچے ایک ہی کلاس میں سارے ہوتے ہیں اکٹھے، ایک کوئی ہو تو پوری کلاس کو ہی یہ لگ جاتی ہے۔ آشوب چشم وائرل ہو یا بیکٹیریل، دونوں ہی صورتوں میں یہ وبائی ہونے کے باعث تیز رفتاری سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لاہور میں اس کے تیز رفتار پھیلاؤ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہر کے سرکاری ہاسپٹلز میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کیونکہ ہائیلی کنٹیجیس سے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ
کرنٹلی اس وقت لاہور میں، تو اگر آپ لاہور کی بات کریں تو یہ بڑی ایک وائڈ اسپریڈ ایپیڈیمک یا آؤٹ بریک ہے. اتنا جس طرح ہمارے پاس لوڈ ہے پرائیویٹ سیکٹر، ٹرسٹ میں، یہ پبلک سیکٹر میں، تو یہ ہر 5واں 7واں مریض جو ہے آپ کو اس مرض کا شکار ملے گا. تعلیمی اداروں میں بھی اس مرض کا تیز رفتار پھیلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. آشوب چشم کا تیزی سے پھیلتا ہوا یہ مرض جان لیوا تو نہیں، لیکن جو صورتحال ہم نے ہاسپٹلز میں دیکھی اس سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تکلیف دہ بہت ہے، اور اس سے بچاؤ کی سب سے بڑی شرط بھی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہی ہے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بارشوں سے ڈینگی لاروا میں اضافے کا خدشہ. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر لاہور میں ڈینگی کے 109 نئے مریض سامنے آ گئے. صبح بھر میں 239 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی. تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین کی اس رپورٹ میں. بارشوں کے باعث پانی جمع ہونے سے صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی لاروا بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 109 جبکہ صوبے بھر میں 243 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. ملتان میں ڈینگی کے 54 نئے مریض سامنے آ گئے. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 1375، راولپنڈی میں 806 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ڈینگی کے سینکڑوں کیسز سامنے آئے. محکمہ صحت حکام کے مطابق ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 56 اور صوبے بھر میں 146 مریض زیر علاج ہیں. سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. ڈینگی بخار کا علاج، معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں محکمہ صحت نے نجی ہسپتالوں سے ہیلتھ کارڈ پر سرجری کے لیے غریب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. ہیلتھ کارڈ کمپنی نے نجی ہسپتالوں میں تمام آپریشن کے لیے 30% ادائیگی کو لازمی قرار دے دیا. تفصیلات سجاد حسین کی رپورٹ میں. ہیلتھ کارڈ پر نجی ہسپتالوں میں آپریشن کروانے والوں کی مشکلات بڑھ گئیں. ہیلتھ کارڈ کمپنی نے تمام آپریشنز کے لیے 30% پیشگی ادائیگی کو لازمی کر دیا. اس سے پہلے چند اہم آپریشنز کے لیے 30% پیشگی ادائیگی ضروری تھی. ڈیلیوری، موتیا اور دل کے آپریشنز کو ہیلتھ کارڈ سے ہٹایا جا چکا ہے. نجی ہسپتالوں میں اب پتا، ہرنیا، گائنی، لیپروسکوپی، ناک، کان و گلا آرتھو اور نیورو کے آپریشنز کے لیے 30% رقم پہلے ادا کرنا ہوگی. سرکاری ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر 30% ادائیگی لازمی نہیں ہوگی. مریضوں کی بڑی تعداد دوبارہ سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرنے لگی ہے. سی ای او ہیلتھ کارڈ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق کا کہنا ہے کہ نجی ہسپتالوں میں لوگوں کی بڑی تعداد آپریشن کروا رہی تھی جس میں فراڈ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ 30% پیشگی ادائیگی نہ کر سکنے والے افراد سرکاری ہسپتال جا کر فری علاج کروا سکتے ہیں. میو ہسپتال میں انٹرویوز کے باوجود ڈاکٹرز کی بھرتی نہ ہو سکی. سرگودا میڈیکل کالج میں غیر قانونی طور پر پرنسپل ڈاکٹر حمیرہ کی تعیناتی کی گئی. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر نواز اشرفی نے مطالبات کی منظوری کے لیے محکمہ صحت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا. مطالبات تسلیم نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان. سجاد کاظمی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. میو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی کمی اور سرگودا ہسپتال میں غیر قانونی پرنسپل کی تعیناتی روکنے کا مطالبہ. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مدثر اشرفی کی میو ہاسپٹل میں پریس کانفرنس. کہا کہ 12 دن سے سرگودا کے ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں. سرگودا ہاسپٹل میں غیر قانونی طور پر پرنسپل کی تعیناتی کی گئی. اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. پچھلے 12 دن سے سرگودا کے آؤٹ ڈور سروسز مکمل طور پر بند ہیں. 48 گھنٹے کے اندر ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری کوئی من پسند شخصیت بھی نہیں ہے. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ریگولر جو وہاں پہ پرنسپل ہے اس کو تعینات کر دیں تاکہ وہ ادارے کی بہتری کے لیے کام کر سکے. اگر وہ نہ کر پائے تو منگل کے روز سے ہم مجبور ہوں گے، ہم اس ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور اس کو پہلے لاہور کے چیپٹرز میں اور پھر درجہ بدرجہ پنجاب بھر میں پھیلا دیا جائے گا. وائی ڈی اے رہنما ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہاسپٹلز میں ادویات کی شدید کمی ہے. مریض ہاسپٹلز میں تڑپ کر مر رہے ہیں. مریض اس وقت تڑپ کے مر رہے ہیں. مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو لکھ دیتے ہیں دوائی. ہمیں بتایا جائے کہ کس ہسپتال میں دوائی اس وقت میسر ہے. لاہور کے کسی ہسپتال میں دوائی میسر نہیں ہے. ہم بڑا اعلان کر رہے ہیں. صدر وائی ڈی اے کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہم سے ہسپتالوں کو بہتر کرنے کے دعوے کیے مگر کہیں عمل درآمد کے امکان نہیں. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. بڑے بروکر کی گرفتاری ہوئی نہ چینی سستی چینی کا حصول. 3 بڑے شوگر ڈیلرز کی گرفتاری سے مشروط ہو کر رہ گیا ہے. عمران اکبر کی رپورٹ.
सस्ती चीनी मिल सकी न महंगी करने वाला कोई पकड़ा जा सका। ताहाल आवाम की तकलीफ जूं की तूं है। खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयां भी कामयाब न हो सकी। 13 बड़े शुगर ब्रोकर्स अभी तक आजाद हैं। रवा महीने के 20 अयाम गुजर गए, सट्टाबाजों शुगर माफिया की गर्दन न मरोड़ी जा सकी। लाहौर के 2, कसूर के 1 समेत 13 ब्रोकर्स को पकड़ने की कोई खबर न आई। अफसरान की जानिब से खामोशी और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। ऐलान करदा 140 रुपए फी किलो चीनी कहीं नहीं मिल रही। सार्फिन 1 किलो के 175 रुपए अदा करने पर मजबूर हैं। शहरियों से रोजाना की बुनियाद पर फी किलो 30 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। बदनीयती शामिल होने से शहर में चीनी की फी किलो कीमत 175 रुपए पर अज खुद फरोख्त की जा रही है। सरकार के 140 रुपए फी किलो चीनी मिलने के दावे ताज़ा हवा के झोंके की तरह उड़ रहे हैं। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि आवाम के लिए एक बाद एक मुश्किल। चक्की आटा 5 रुपए महंगा कर दिया गया। देसी आटे की फी किलो कीमत 175 रुपए हो गई। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत का इतलाक भी कर दिया है। महंगी गंदम और बिजली को आटा महंगा करने का जवाब करार दिया गया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। महंगाई के तूफान ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। चक्की आटा मजीद महंगा, 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से नई कीमत का इतलाक भी कर दिया गया। पहली बार चक्की आटा के निर्ख 175 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। महंगी गंदम और बिजली, आटा महंगा करने का जवाज करार। मंडी में गंदम 4,900 रुपए से 4,920 रुपए फी मन बेची जा रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते में गंदम 150 से 200 रुपए फी मन तक महंगी हुई। बिजली महंगी होने से भी पैदावारी अखराजात बढ़ रहे हैं। आवाम कहते हैं पहले ही महंगाई दर्दे सर बन चुकी है, अब आटा भी महंगा करके मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। आटा इस वक्त मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। इसकी वजह ये है कि जी इन्होंने तो हमें किसी कहीं का नहीं छोड़ा। ये हम लोग किसी न किसी तरह हम लोगों में बस ना एक अपना एक असर रसूख डालने के लिए करते हैं। वो कहते हैं बस गरीब के लिए तो महंगाई है नहीं। इतना बुरा दौर हमने आज तक नहीं देखा जितना लोगों को आटे ने और ये बिल ने महंगाई ने जीना आराम कर दिया। हम तो यही आपकी वसात से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, कुछ ना कुछ रिलीफ। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। सफ़ेद पोश आदमी जो है ना ख़ास तौर पे वो पिस रहा है। 20 किलो आटे का थैला 2,750 रुपए से 2,850 रुपए में दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 140 रुपए और सफेद फाइन आटा 150 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आटे के थैले के निर्ख भी बढ़ने का इम्कान मौजूद है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कौम महंगाई की आग में चल रही है। PDM में शामिल कोई भी जमात इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी नजर नहीं आती। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। बिजली पेट्रोल की कीमतों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के गवर्नर हाउस के बाहर धरने का तीसरा और आखिरी रोज कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने धरने से खिताब करते हुए कहा, कौम महंगाई की आग में जल रही है। सिराजुल हक ने कोयटा और फिर मुल्तान में भी धरने का ऐलान कर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है। मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही है। सिराजुल हक ने मजीद कहा, पाकिस्तान में हर चीज महंगी, सिर्फ मौत सस्ती है। PDM में शामिल कोई भी जमात इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज महंगी है, एक मौत सस्ती है। जो कौम के साथ दर्द और गम बांटने के नारे लगा रहे थे, आज न वो PDM वाले हैं, न वो PTI वाले हैं, न वो पीपल पार्टी वाले हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी मुफादात की आग में जल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो मुस्तकबिल में मजीद शदीद एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मुबीन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, लंदन में होने वाली नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
नून लीग के लंदन में होने वाले इजलास में अहम फैसले, मसालहाना की बजाय जारहाना बयानियां। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ भी अपने भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिया पर नजरसानी से इनकार कर दिया। बोले, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब होना चाहिए। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। आज मुल्क की जो हालत है उसके जिम्मेदार वही इनासर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ का साथ दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के हामी हैं। इजलास में शहबाज शरीफ ने साजिशी किरदारों के एहतसाब के हवाले से पार्टी के अंदर पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया। मरीम नवाज ने सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। पार्टी के बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला, जिसके लिए नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ तलब कर लीं। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तमाम मामलात नवाज शरीफ खुद बराह रास्त देखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। वो नून लीग की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने राय दी कि नवाज शरीफ की आमद पर मुआशी रिलीफ का बयानिया भी साथ लेकर चलना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करेगी। सैफुल मुलूक खोकर को जलसों के शेड्यूल का टास्क सौंप दिया गया है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लाहौर आमद का मामला। वतन वापसी से कबल नून लीग का लाहौर में 7 जलसों के इनेकाद का फैसला। जलसों के शेड्यूल का टास्क सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुलूक खोखर को दे दिया गया। जलसों से मरीम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहर्रिक किया जाएगा। मरीम नवाज का पहला जलसा NA 123 और NA 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरा जलसा नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 125 और NA 126 में होगा। तीसरा जलसा NA 127 और NA 128 में होगा। NA 135 और NA 136 का अलग जलसा किया जाएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ, राना मुबशर इकबाल और मियां इमरान जावेद के हल्के में भी मुश्तरका जलसा होगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक के हल्कों में भी जलसा किया जाएगा। तमाम जलसे 1 से 8 अक्टूबर के दरमियान किए जाएंगे। तारीखों का हतमी ऐलान बाद में होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन PTI की जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन PTI ने अपने वकील की वसातत से दायर जमानतों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में सजा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अबूरी जमानतों को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत मेरिट की बुनियाद पर फैसला करने का हुक्म दे और चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें मुस्तरद करने के इकदाम को कलअदम करार दे। चेयरमैन PTI के खिलाफ लाहौर में 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर शुगर मिलों की क्रशिंग का कोटा बढ़ाने का केस लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुकदमे में नामजद परवेज इलाही के शरीक 4 मुलजमों की जमानतें मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शुगर मिल्स की क्रशिंग का कोटा गैर कानूनी तौर पर बढ़ाने का मुकदमा एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ऐवान ने मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने मुलजिम परवेज अख्तर, खुरम शहजाद, नवाज चीमा और अहमदीन की जमानतें मंजूर की। एंटी करप्शन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान ने परवेज इलाही के कहने पर गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स की क्रशिंग का कोटा बढ़ाया, लिहाजा मुलजिमान की जमानतें खारिज की जाएं। जबकि मुलजिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा सियासी नवैयत का है, अदालत जमानतें मंजूर करने का हुक्म दे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन और मुलजिमान के वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया और चारों मुलजिमान की 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज जमानतें मंजूर कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने के लिए पुलिस ने फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू कर लिया है। अली अफजल शाही के खिलाफ हसास इदारे पर हमले का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में हसास इदारे पर हमले का केस, मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल कर ली गई। पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के रूबरू पुलिस की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए मुतअद्दिद नोटिस भिजवाए गए। पुलिस की दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को शामिल तफ्तीश होने का कहा गया, लेकिन वो
शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत से अली अफजल शाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर अली अफजल शाही को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह समेत 55 मुल्ज़िमान की जमानतें खारिज कर दी। सनम जावेद समेत 9 मुल्ज़िमों की जमानत मंजूर कर ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की एटीसी की खुसूसी अदालत के जज इरशाद जावेद ने जिना हाउस हमला केस में 64 मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला सुनाया। अदालत ने खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 55 मुल्ज़िमान की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें खारिज कर दी। सनम जावेद, रुबीना जमील, अफशा तारिक, अशमा शुजा, शाबानो और सैयद फैसल अख्तर की जमानत मंजूर। एटीसी की अदालत ने मुल्ज़िम कासिम, अली हसन, हुसैन कादरी की भी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सनम जावेद समेत 9 मुल्ज़िमों को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। तमाम मुल्ज़िमात पर 9 मई को जिना हाउस हमले का मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बारिश ने शहर के नशेबी इलाकों का नक्शा ही बदल दिया है। इंतजामिया नकासी आप से बेखबर, शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजपुरा स्कीम, आमिर टाउन, लालपुल के इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि बच्चों और खवातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। बारिश बरसी और खूब बरसी, शहर के नशीबी इलाकों का मंजरनामा तब्दील। आमर टाउन, हरबंसपुरा में हर तरफ पानी ही पानी। ताजपुरा और कनाल बैंक स्कीम्स की गलियों और पार्क्स में पानी जमा। लालपुल के बाजार में भी पानी का राज। नशीबी इलाकों में लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। किसी की बाइक बंद तो कोई पैदल ही पानी से गुजर कर मंजिल मकसूद तक पहुँचने पर मजबूर। खवातीन और स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हुए। बारिशी पानी की वजह से लोग परेशान, कहते हैं कि कई घंटों तक पानी का निकास अमल में नहीं आता। बच्चों और खवातीन के लिए गुजरना मुहाल हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया इन इलाकों में चक्कर ही नहीं लगाती। थोड़ी जी बारिश होंदी थे पानी खड़ा हो जाता, 5-6 घंटे थे लंघन का रास्ता नहीं मिलता। बेबियां बच्चे बहुत तंग होंगे ने। फुटा ने साहब अगे तो जाओ तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा भाई। यहाँ जब भी बारिश होती है तकरीबन 2-2 दिन पानी नहीं निकलता और बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी तंगी तकलीफ होती है और लेडीज़ के लिए भी मुश्किल है। बाजार कोई चीज़ लेने आने जाने के लिए भी मसला है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के पसमानदा नशीबी इलाकों को नज़रअंदाज करना मामूल बन चुका है, जहाँ बारिशी पानी के निकास के लिए बर वक्त कार्रवाइयों से इज्तनाब बरता जाता है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि हालिया मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। लाहौर की बेशुमार सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। दिलकश लाहौर की मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। सड़कों पर पैचवर्क का मिशन भी बुरी तरह नाकाम हो गया। चौक और शाहराहों पर जाबजा छोटे बड़े गड्ढों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। मूसलाधार बारिशों से शहर लाहौर की सड़कों पर जा बजा खड्डे पड़ गए। 6 माह गुजर गए, दिलकश लाहौर मुहिम पर एक धेले का खर्च न हो सका। सड़कों पर पैचवर्क का मिशन भी बुरी तरह नाकाम होकर रह गया। गलियों, चौराहों और अहम शाहराहों पर खड्डों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतजामिया के शटल दौरे फोटोशूट से ज्यादा कुछ साबित न कर सके। 274 यूनिट काउंसिल समेत 36 अहम शाहराहों पर 5000 से ज्यादा खड्डे मौजूद। शहर के 6 लाख मुरबा फुट इलाके पर पैचवर्क का काम सुस्त रवि का शिकार। सैकड़ों शहरियों की शिकायत मौसूल होने के बावजूद कोई सुनवाई ना हुई। जीटी रोड, इमामिया कॉलोनी फाटक, शाहदर्रा, बादामी बाग रोड पर खड्डे, एबर्ट रोड, एजर्टन रोड, डेविस रोड, अनारकली, नीला गुंबद, शाह आलम रोड का पैचवर्क न हो सका। इकबाल टाउन, समनाबाद, मुजंग, कैनाल रोड, लोयर माल पर भी खड्डे। चीफ इंजीनियर मियां साकिब का कहना है कि बारिशों के बाद सड़कों की बहाली का काम जल्द शुरू होगा। खड्डों को पैच लगाने की डिमांड एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को भिजवा दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शहर में 177 मिलीमीटर बारिश ने जल थल कर दिया। तरक्याती मंसूबे शदीद मुतासर हुए। ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक बारिशी पानी से भर गया। जौहर टाउन मेड बुलेवार्ड पर भी पानी ने बसेरा किया। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर हुई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर में होने वाली बारिशों से जारी तरक्याती मंसूबे मुतासिर होने लगे। खालिद बट चौक पर अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर जेर तामीर मंसूबे जेर आप आ गए। कैवलरी ग्राउंड से खालिद बट चौक तक सड़क बारिशी पानी से भर गई। अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर के लिए पायलिंग की खुदाइयों में पानी भर गया। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन जाने वाली सड़क पर बारिशी पानी जमा होने से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। अंडरपास पर भारी मशीनरी के जरिए खुदाइयों से पानी निकाला जा रहा है। जौहर टाउन में 88 मिलीमीटर बारिश ने हर जानिब पानी पानी कर
कर दिया। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन अल्लाहू चौक से शौक चौक तक दरिया का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर 2 फुट तक गहरा पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई। वासा की जेटर और शक्कर मशीनें बारिशी पानी का बरवक्त निकास न कर सकी। बारिशी पानी का निकास न होने की वजह से खयाबान फिरदौसी पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा इंतजामिया ने पानी के बिलों में मजीद इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। ज़ाती ट्यूबवेल लगाने वालों से ज्यादा बिल लिया जाएगा। वासा ने वर्किंग पेपर LDA गवर्निंग बॉडी को भिजवा दिया है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखिए। वासा इंतजामिया पानी के बिलों में मजीद इजाफा करेगी। ज़ाती बोर करने वालों के लिए नए रेट्स का वर्किंग पेपर तैयार। ज़ाती ट्यूबवेल्स लगाने और बोर करने वालों को ज्यादा बिल देना पड़ेंगे। जेर जमीन पानी निकालने और वासा की ड्रेन में फेंकने वालों से ज्यादा बिल लिया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बड़े दफातर के बिलों में इजाफा होगा। 2017 के रेट्स के मुताबिक सीवरेज चार्जेस 50,000 फी क्यूसिक माहाना है। वासा ने सीवरेज चार्जेस 1.5 लाख रुपए फी क्यूसिक माहाना करने की तजवीज़ दी। ड्रेनेज चार्जेस 3,450 रुपए फी एकड़ सालाना वसूल किए जा रहे हैं। वासा ने ड्रेनेज चार्जेस 80,000 रुपए फी एकड़ माहाना करने की तजवीज़ दी। LDA गवर्निंग बॉडी ने वासा की तजवीज़ का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सफाई कंपनी को खुद मुख्तार बनाने का मंसूबा, कमर्शियल टैक्सेस में इजाफा और यूनिट्स बढ़ाए जाएंगे। 97,000 की जगह 5.5 लाख यूनिट से सफाई टैक्स लेने की समरी तैयार कर ली गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सफाई कंपनी को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश, कमर्शियल टैक्स बढ़ाने का प्रोग्राम तैयार। इंडस्ट्रीज और गोदाम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के टैक्स रिडार पर एक मरले की दुकान पर सालाना 1,000 रुपए टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। बैंक और मार्केट से सालाना 4,800 रुपए सफाई टैक्स लिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट से 9,600 रुपए सफाई टैक्स चार्जेस होंगे। सफाई टैक्स के नए कमर्शियल रेट्स की मंजूरी निगरान वज़ीर आला पंजाब देंगे। LWMC 97,000 कमर्शियल यूनिट से सफाई टैक्स वसूल कर रही है। समरी के मुताबिक कंपनी नए टैक्सेस अब 5,50,000 कमर्शियल यूनिट्स पर लगाएगी। इस वक्त 97,000 कमर्शियल यूनिट से 70 और 80 करोड़ रुपए के लगभग रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। मजीद यूनिट्स पर टैक्स लगाने से सालाना 22 अरब 28 करोड़ रुपए आमदन होगी। CEO कंपनी बाबर साहबदीन का कहना है कि कमर्शियल सफाई टैक्स बारे वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। शाहदरा प्रोजेक्ट में दरियाए रावी पर एक नए पुल की तामीर का मंसूबा भी शामिल है। LDA के तैयार करदा PC1 के मुताबिक 2 अरब रुपए की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। रावी से फिरोजवाला तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जारी। शादरा प्रोजेक्ट पर रावी पुल की तोसी का प्लान भी शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट के तहत रावी पुल से इमामिया कॉलोनी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का नया डिजाइन तैयार। शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट के नए डिजाइन का अक्स लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। LDA के शोबाई इंजीनियरिंग ने रावी पुल तोसी का PC1 बना लिया। लाहौर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर 5 किलोमीटर से ज्यादा तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए रावी पुल की मरम्मत, बहाली और नई लेन का इजाफा किया जाएगा। नए रावी पुल की तामीर के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। नए डिजाइन के मुताबिक रावी पुल 10 लेन पर मुश्तमिल होगा। 4 लेन ट्रैफिक के लिए मुख्तस होंगी, जबकि 2 लेन मेट्रो बस के लिए होंगी। LDA समेत दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर शादरा मंसूबे को सिग्नल फ्री बनाएंगे। नया डिजाइन दोबारा मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को पेश किया जाएगा। खबर शामिल करें। लाहौर की तारीखी सब्जी और फल मंडी की मुंतकली की तारीख रकम न हो सकी। 17 माह में पंजाब में यके बाद दीगर 3 हुकूमतें रहीं। बादामी बाग सब्जी मंडी वहीं मौजूद है। रूटा ने मुतबादिल 200 एकड़ जमीन ताहाल ना दी। सब्जी मंडी अब निगरान हुकूमत की तवज्जो की मुंतजर है। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। बादामी बाग की सब्जी और फ्रूट मंडी दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सकी। गुजदार, हमजा और परवेज इलाही अदवार में गेम चेंजर मंसूबे पर कोई अमल ना हुआ। रूडा की जानिब से मुतबादिल 200 एकड़ जमीन ताहाल न दी जा सकी। इदारे की जानिब से कमिश्नर को महज ब्रीफिंग से बात आगे न बढ़ सकी। नवंबर 2022 में रूडा को 16 कनाल की जदीद मंडी बनाने पर काम शुरू करने का कहा गया। नई सब्जी और फ्रूट मंडी पर 8 अरब रुपए तखमीना लागत के वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक अराजी और तामीर के बदले 24 अरब रुपए सब्जी मंडी का रेवेन्यू रूडा को देने पर इत्तेफाक हुआ। ये अराजी GT रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर दी जानी है। मंडी से 15,000 अफराद को बराह रास्त और 2 लाख को बिलवास्ता रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए जदीद खतूत पर रिसर्च और आगाही सेंटर भी बनेगा। इब्तदाई मरहले में रोजाना
32 करोड़ और माहाना 11 अरब 50 करोड़ पे रेवेन्यू पैदा होगा। 1000 कमीशन एजेंट्स, 5000 फड़िये, 2000 मजदूर और 1500 गाड़ियां रोज आएंगी। नई मंडी में 1500 आड़ती, कोल्ड स्टोरेजेस और गोदाम बनाने का मंसूबा भी शामिल है। एक आड़त 2 करोड़ 20 लाख रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा है। रवा साल जनवरी फरवरी में रिंग रोड पर अराजी की तैयारी का आगाज होना था। मामला ब्रीफिंग्स और इजलास से आगे न बढ़ सका। गेम चेंजर मंसूबा इल्तवा का शिकार है। सदर मार्केट कमेटी हाजी शबीर कहते हैं कि सब्जी मंडी की मुंतकिली से शहर की हालत बेहतर होगी और कारोबार को भी फरोग मिलेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रूडा से हतमी प्लान जगह की निशानदही और तकमील का दौरानिया तलब कर लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेट्रो बस के बढ़ते हादसात, मेट्रो ट्रैक की हालत जार बड़ी वजह करार, स्टेशन के जंगले बैरियर, इलेक्ट्रिकल सामान की टूट फूट और ख़राब लाइट्स का इंकशाफ। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर हादसात मामूल बन गए। मेट्रो ट्रैक की हालत जार बस हादसात की बड़ी वजह करार, स्टेशन के जंगले बैरियर्स, इलेक्ट्रिक सामान की टूट फूट और खराब लाइटों का इंकशाफ। ठेका दे दिया मगर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू न हो सका। शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस में इदारों की नाअहली भी शामिल। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हैं। ट्रैक और एड ग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, एक ट्रांसफार्मर भी जल चुका। एड ग्रेड की 10 अर्थिंग पिट्स, डेटा कैबिन और 2 एयर कंडीशनर्स भी गैर फाल हैं। मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर नस्ब 31 पंखे भी बंद हैं। मेट्रो बस की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 86 लाख 41 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया, मगर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रकम खर्च न की। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो ट्रैक की मुरम्मत और बहाली जारी है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने की मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। हेलमेट की वजह से शहरियों के 10 लाख चालान किए गए। CTO लाहौर कहते हैं 3 बार चालान के बाद मोटरसाइकिल बंद होगी। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल सवार हजरात को हेलमेट पहनाने की मुहिम जारी। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने मॉल रोड पर हेलमेट मुहिम का मुआयना किया। मुस्तनसर फिरोज मुहिम को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म नजर आए। उनका कहना था कि हेलमेट की पासदारी करने का फायदा आवाम को ही होगा। CTO लाहौर का मजीद कहना था कि हम ये मुहिम चालान करने के लिए नहीं बल्कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए चला रहे हैं। हेलमेट के इस्तेमाल से हादसात में वाज़ेह कमी आई है। हमारा पर्पज़ ये था कि हम 100% जो है मोटरसाइकिल राइडर्स उनको हेलमेट पहनाएं, इस बात को इंश्योर करें कि वो हेलमेट पहने जिससे उनकी जान की हिफाजत हो। हमारा मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कंप्लाइंस उस हद तक नहीं की, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को चालान किया जा चुका है अब तक, और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। हादसात की जब हम बात करें तो रेस्क्यू 1122 का डाटा है, उसके मुताबिक जो पिछले साल सितंबर तक हादसात हुए उसमें 362 लोग जो है वो अपनी जान से गए, जबकि इस साल ये तादाद कम होकर 282 हो चुकी है, जिससे एक खुशाइंद एक खबर मिलती है कि जो अमवात है उनमें कमी वाक़ हो रही है। दूसरी जानब CTO लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान के इजलास में हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम और पार्किंग के मसाइल का जायजा लिया गया। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 3 दफ़ा चालान के बाद मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड किट्स को बंद करने का फैसला। 500 कंक्रीट बैरियर्स मंगवा लिए गए। टीपा और ट्रैफिक पुलिस रोड किट्स को बंद करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए LD और टीपा का बड़ा फैसला। शहर लाहौर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स को बंद किया जाएगा। गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक बड़े शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने आज खुद रोड कट्स बना लिए हैं। लारी अड्डा और गड़ी शाह सेक्टर में 6, कोट लखपत में 9 गैर कानूनी रोड कट्स बंद किए जाएंगे। शेराकोट सेक्टर में 7, रेलवे स्टेशन मुगलपुरा में भी गैर जरूरी रोड कट बंद किए जाएंगे। इलामा इकबाल रोड पर 5, बंद रोड पर 27, मुल्तान रोड पर 12 गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी का कहना है कि रोड कट्स बंद करने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर्स मंगवा लिए गए हैं। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत, करोड़ों रुपए मालियत की खराब बोगियां लावारिस, चोर और नशई बोगियों से लोहा काट कर फरोख्त करने लगे। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि खराब बोगियों की नीलामी पर पाबंदी आयद है। फहद अमीन की रिपोर्ट।
करोड़ों रुपए मालियत की खराब बोगियां रेलवे इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। फाटक नंबर 1, हरबंसपुरा, जल्लो फाटक, वॉशिंग लाइन समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों खराब बोगियां खड़ी हैं। जराये के मुताबिक खराब बोगियों को लावारिस छोड़ दिया गया है। हिफाजती इकदामात न होने से नशई और चोर बोगियों का लोहा काट कर फरोख्त कर रहे हैं। जराये के मुताबिक खराब खड़ी बोगियों से लाखों रुपए का दीगर सामान भी चोरी हो चुका है। रेलवे मुलाजिमीन का कहना है कि करोड़ों रुपए की कोचेज और दीगर सामान चोरों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। रेलवे इंतजामिया इन बोगियों को ठीक करवाए या नीलामी करके रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात ही अदा कर दे। तर्जुमा रेलवे का कहना है कि खराब बोगियों की नीलामी पर पाबंदी आयद है। पाबंदी खत्म होते ही बोगियों और दीगर खराब सामान की नीलामी की जाएगी। यहाँ पर आपको बताएं कि वासा ड्रेनों से मुल्हिका अराज़ी का मालिक कौन? 40 साल बाद भी वासा को जमीन के इंतकाल का मामला हल न हो सका। अरबों रुपए मालियत की अराज़ी पर कब्जा माफिया ने कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के साथ गंदे नालों के साथ कई सौ किनाल अराजी की मलकियत के बारे ताहाल फैसला न हो सका। मार्च 1967 में वाटर डिवीजन लाहौर की तश्कील अमल में आई और 1975 में LDA एक्ट के तहत वासा का क़याम वजूद में आया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और गंदे नालों की जिम्मेदारी वासा को मिल गई, मगर शहर से गुजरने वाले गंदे नालों की जमीन ताहाल वासा को मुंतकिल न हो सकी। अराजी का इंतकाल न होने की वजह से वासा इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से गुरेजा। वासा के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने जमीन का इंतकाल कराने के लिए DC ऑफिस को खत भी लिखा। जमीनों का इंतकाल न होने से वासा की ड्रेनों पर मुबैना कब्जों का इंकशाफ हुआ है। कब्जा माफिया ने वासा के साथ बड़ी ड्रेनों पर नर्सरियां बना रखी हैं। गुलबर्ग ड्रेन, कैंट ड्रेन और हडियारा ड्रेन पर गैर कानूनी नर्सरियां कायम हैं। वासा रिकॉर्ड में ड्रेनों से मुल्हिका अराजी अब भी दीगर इदारों के नाम है। नर्सरियों के मालिकान ने अराजी का इंतकाल न होने के सबब किराया देने से भी इनकार किया। वासा इंतजामिया का कहना है कि जमीन का इंतकाल कराने के लिए कमिश्नर ऑफिस को खत लिख दिया है। कमिश्नर और DC ऑफिस की मदद से ड्रेनों की अराजी वागजार कराएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर को खूबसूरत और मसाइल से पाक करने के लिए नए नाम के साथ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सड़कों की मुरम्मत, कूड़े की सफाई समेत दीगर अमूर के लिए स्मार्ट लाहौर ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। अवाम को अपनी शिकायत बजरिया ऐप अपलोड करने की सहूलत भी दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को नया टास्क मिल गया। सुहना लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, दिलकश लाहौर, ग्रीन लाहौर के बाद अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से नई एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। LDA, वासा, टीपा, PHA, MCL और दीगर इदारे इस मंसूबे के तहत काम करेंगे। स्टेक होल्डर समेत आम शहरियों को स्मार्ट लाहौर ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत दी जाएगी। स्मार्ट लाहौर मंसूबे में सड़कों, फुटपाथों की मुरम्मत, वॉक कीज की बेहतरी, पेडिस्टेरियन पुलों का काम किया जाएगा। लाहौर के बासी सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक शिकायत ऐप में अपलोड कर सकेंगे। गैर कानूनी तामीरात, कब्जा, सरकारी अमलाक को नुकसान से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। पार्कों की हालत जार और सड़कों की अबतर सूरत हाल की तस्वीर भी नई ऐप में अपलोड की जा सकेंगी। स्मार्ट लाहौर ऐप पर आने वाली शिकायत को हल करने के लिए मुतालिका ऑफिसर को 1 से 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि शहर में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ। बॉर्डर जीरो लाइन के 8.1 किलोमीटर की हदूद में गैर कानूनी स्कीमें मौजूद हैं। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला। काबीना कमेटी को हाउसिंग स्कीमों की निशानदही रिपोर्ट भिजवा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। शहर में 91 गैर कानूनी फार्म हाउस स्कीमों का इंकशाफ। बॉर्डर जीरो लाइन के 8.1 किलोमीटर की हदूद में गैर कानूनी स्कीमें मौजूद। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला। काबीना कमेटी को हाउसिंग स्कीमों की निशानदही रिपोर्ट भिजवा दी गई। तहसील कैंट में 62 और शालीमार में 29 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों की निशानदही। ज़रई ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर तहरीरी हल्फनामा लिया जाएगा। ज़रई ज़मीनों पर फार्म हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई जाएगी। तहसील कैंट में गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों में अल्फला और लाहौर ग्रीन सिटी के नाम शामिल। वाइटल सिटी, स्प्रिंग मैडोज, CM गार्डन, अल मका हाउसिंग स्कीम भी गैर कानूनी। न्यू आज़ादी आशियाना, स्प्रिंग हाउसिंग, हाजी पाक, रफीक हाउसिंग स्कीम भी शामिल। सदीक कॉलोनी, राजा जावेद स्कीम, चौधरी होम्स, न्यू डेरा विलेज स्कीम भी गैर कानूनी। तहसील शालीमार में गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों में कनाल फोर्स 2 शामिल है। रिजवान गार्डन, वागा गार्डन, सादी ग्रुप, अवाम गार्डन, सुबहान गार्डन भी शामिल। जहानिया स्कीम, मलिक वजीर होम्स, इस्लाम दीन स्कीम की भी निशानदही। पटवारी हाउस, मलिक जावेद तहसीन, रावी साइफन स्कीम, मलिक हकीम मजीद स्कीम भी गैर कानूनी। जिला इंतजामिया लाहौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटीज पर अगले 15 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
लाहौर रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, CCTV कैमरे और लगेज स्कैनर खराब निशानदही के बावजूद सिक्योरिटी आलात ठीक ना करवाए जा सके। फाद अमीन की रिपोर्ट। रेलवे लाहौर डिवीजन इंतजामिया की मुबैना गफलत, लाहौर रेलवे स्टेशन पर इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV कैमरे और लगेज स्कैनर कई बरसों से खराब हैं। रेलवे इंतजामिया और पुलिस सिक्योरिटी आलात को ठीक कराने से कासिर है। जराये के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर 47 CCTV कैमरे और 3 लगेज स्कैनर नस्ब हैं। 40 से जायद CCTV कैमरे खराब हैं, जबकि 2 लगेज स्कैनर भी जवाब दे चुके हैं। निशानदही के बावजूद ताहाल CCTV कैमरों को फाल नहीं किया जा सका। खराब कैमरे मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गए। सामान गुम या चोरी होने पर रेलवे पुलिस को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। SP रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन राना इफ्तिखार का कहना है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर 62 जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। और अभी आपको बताएं, टूटी फूटी सड़कें और तजावुजात की भरमार अंदरूनी शहर लाहौर का बड़ा मसला बन गई। मिसाइल के बाद शहर का हुस्न बुरी तरह गहनाने लगा है। मुतल्लिका इदारों की सूरत हाल में जल्द बेहतरी का दावा। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। एक शहर बेमिसाल कहलाए जाने वाले लाहौर का कदीम हिस्सा हजारों साल पुरानी तारीख का हामिल है। इस खित्ते में आने वाले हर हुक्मरान ने मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर अपने नकूश सब्त किए, जिनमें से बेशुमार तो वक्त के साथ मिट गए, लेकिन बेशुमार आज भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि अंदरूनी शहर के बड़े हिस्से में मुतअद्दिद मसाइल की भरमार तारीख के इन आसार का हुस्न गहना रही है। बड़े मसाइल है कि यहाँ पे तारे देखें आप, बिजली की तारे, खंबे, ट्रांसफार्मर के मसाइल हैं, रिक्शे वगैरह, चिमची वगैरह, सारे ट्रैफिक का बड़ा इशूज़ है। जो यहाँ पे कारखाने अंदर बने हुए हैं, जो जूतियों के कारखाने हैं, वो लोग सफाई का जो अपना सारा कूड़ा गिरकर है वो बाहर फेंकते हैं, उससे भी सीवरेज बंद हो जाता है। शहर में आते हैं, शहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है। अंदरूनी शहर लाहौर के बासियों के मुताबिक तजावजात और टूटी फूटी सड़कें और गलियां बेशुमार मसाइल का बाइस बन रही हैं। शिकवा ये भी है कि मुतल्लिका इदारों की तरफ से शहर के सिर्फ एक मखसूस हिस्से पर ही तवज्जो दी जा रही है, जबकि शहर के बड़े हिस्से को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। दूसरी तरफ हुक्काम सूरत हाल में जल्द बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं। हम जो है एक तो भाटी गेट का एरिया सारा जो है उसको शुरू करेंगे, और दूसरा साइड जो है नॉर्दर्न साइड से टकसाली साइड, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फूड स्ट्रीट है, फज्जा पाए वाला है, और आगे अली पार्क और रिम मार्केट भी हैज़ टू बी डेल्ट विद, उसकी शिफ्टिंग का प्रोसेस। उम्मीद वासिक है कि इन दावों की ताबीर ज़रूर सामने आएगी। अंदरूनी शहर लाहौर के बेशतर हिस्से की तो जो सूरत हाल है सो है ही, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ ही करार दिया जा सकता है। और हकीकत तो ये भी है कि इन हालात की बड़ी वजूहात में से एक खुद हमारा अपना रवैया है, और हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।